हेलो। इस आवाज जा रही है? Yes, sir. Just wait 1 minute and then we will start the class. Only 2 students till now, so just wait 1 minute. Okay, fine. So shall I start now? Yes, sir. Okay. So what we have discussed in the previous class, I think no load test and load test of short circuit test of the transformer. You know? So today we are going to discuss some another parts of the transformer, that means the per unit system. Okay. So are you anyone familiar with the per unit system? How you can represent the per unit of any quantity? That means electrical quantity. We are generally talking here electrical quantity. Okay, so first share the screen and then we will continue. Okay, so we are going to discuss the per unit system of the transformer today. So actually for any electrical machine, that means either transformer, DC machine, or maybe in later semester you maybe study three-phase induction motor. So whatever the electrical machine or electrical system, okay, the various calculations are more commonly done by the per unit quantity. That is more calculation is done in easy way. Okay, so we try to express all the electrical machine, or if any particular machine you have, suppose that solve any numerical, so you just try to maybe if some data are provided in per unit, then you try to convert all those remaining data who are not given in per unit. So you just convert that data in per unit, and then you may find out another component of the transformer or some other machine. Okay, so we basically try to concern here the transformer. Since we are discuss the transformer, so we more concerned about the transformer, do not concern of the other types of electrical machine, or you will find out this per unit representation in all the machine. Okay, either in power system or in the DC machine. So we are going to discuss here about the electrical transformer. Okay, so how we can represent the actually which parameter we are generally representing the transformer? Generally voltage, current and impedance, यही तो मेन पैरामीटर्स है ना, हम लोग जो डील कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के साथ. वोल्टेज, आइदर वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी साइड, करंट प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड. So for any system,
first we just try to define the per unit. Okay, how we can convert. So either voltage, current, and resistance, reactance, or impedance. Okay, so for any system, the per unit value are obtained by choosing a set of certain base value, which can be chosen arbitrarily as the rated value of the device. Okay, rated value of the device. That means we just convert the any parameters on the base value. Okay, for that particular machine. So if when we choose the base value and then we just try to convert corresponding to that base value, what is the resistance value and reactance value, or maybe voltage or current. Okay, so when we discuss about the per unit, so first our target is to choose the base value, and corresponding to that we just try to convert all the following parameters in per unit. Okay, so the per unit can be defined as the ratio of actual quantity. That means either you want to voltage or current or resistance or reactance. That means anyone. Actual quantity in any unit to the base value of that quantity in the same unit. That means in which unit you have to consider the actual quantity. Okay, so actual quantity and base quantity you have to consider in the same unit, and it is ratio of that one. Okay, so is it clear to all of you the definition of per unit quantity? I am not telling about any specific, that means voltage, current, or resistance. Just any quantity if you want to express in per unit. Okay, that means it is nothing but the ratio of actual quantity. That means either if you consider that voltage or current or resistance or reactance to the base value of that quantity in the same unit. So is it clear to up to this point? Hello? हिंदी में बता देते तो अच्छा रहता। हिंदी में पर यूनिट क्वांटिटी थी, हम लोग सपोज करो कि वोल्टेज का कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, करंट का कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या रेजिस्टेंस का करना चाह रहे हैं, तो जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें, ठीक है, उस सिस्टम का हम लोग जो रेटेड वैल्यू होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज द बेस वैल्यू, एंड उसी के करस्पॉन्डिंग टोटल जो भी क्वांटिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है पर यूनिट में, उसमें हम लोग को कन्वर्ट कर देना है रेशियो में। ठीक है, तो पहला काम हम लोग को क्या करना है, बेस वैल्यू चूज करना है। दैट मीन्स व्हाट एवर द रेटेड वैल्यू ऑफ द सिस्टम, और वी आर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसका ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर का यदि हम लोग बात करेंगे तो किधर, आइदर प्राइमरी साइड हाई वोल्टेज साइड या लो वोल्टेज साइड। तो हाई वोल्टेज साइड का जितना भी पैरामीटर्स है, या वोल्टेज, करंट, या रेजिस्टेंस, या रिएक्टेंस, ठीक है, इसको यदि पर यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इसका हम लोग बेस वैल्यू कौन सा चूज करेंगे, जो हाई वोल्टेज साइड का रेटेड वैल्यू रहेगा। ठीक है, जो हाई वोल्टेज साइड का रेटेड वैल्यू रहेगा उसको हम लोग बेस वैल्यू चूज करेंगे, एंड उसी के क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। हम लोग करना क्या है, जो भी क्वांटिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक देखे तो ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग का कैलकुलेशन कर रहे थे, सेकेंडरी वाइंडिंग का कैलकुलेशन कर रहे थे, आइदर रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे, पावर लॉस फाइंड आउट कर रहे थे, या जो भी पैरामीटर हम लोग एनालिसिस कर रहे थे ट्रांसफार्मर का, तो उसको हम लोग जो भी कन्वर्ट करना है इसको हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि हम लोग पर यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस को। ठीक है, हाई वोल्टेज साइड को भी, लो वोल्टेज साइड को, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे जस्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट कंसीडर क्या करते हैं, हाई वोल्टेज साइड।
तो हाई वोल्टेज साइड हम लोग यदि कंसीडर कर रहे हैं तो बेस वोल्टेज क्या होगा? बेस वोल्टेज क्या होगा? हाई वोल्टेज साइड का जो भी रेटेड वोल्टेज होगा वही बेस वोल्टेज कंसीडर करना पड़ेगा हम लोग को। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेस वोल्टेज V suffix BH से, हाई वोल्टेज साइड, कैपिटल B फॉर बेस एंड H फॉर हाई वोल्टेज साइड। ओके, तो हाई वोल्टेज साइड बेस वोल्टेज is nothing but the rated voltage of the high voltage side. Okay, and what is the base current on the high voltage side? Just base current high voltage side कितना होगा? रिप्रेजेंट करेंगे I suffix BH, that means base current on the high voltage side. Sorry, base current on the high voltage side. Okay, तो यदि हम लोग वोल्टेज और करंट कंसीडर कर लिए तो इसको हम लोग करंट को क्या लिख सकते हैं? पावर के फॉर्म में वोल्ट एम्पियर रेटिंग, दैट मींस पावर डिवाइडेड बाय यदि वोल्टेज कर दें तो क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा ना, नहीं लिख सकते हैं? यदि ट्रांसफार्मर का पावर रेटिंग दिया हुआ है डिवाइडेड बाय वोल्टेज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बेस करंट निकल जाएगा ऑन दी हाई वोल्टेज साइड। यदि कोई ट्रांसफार्मर 20 केवी दिया हुआ है, इसलिए हम प्रीवियस क्लास में एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे, कुछ 20 केवी दिया हुआ है, उसका हाई वोल्टेज दिया हुआ है, कितना कंसीडर किए थे हम लोग? 2500, और लो वोल्टेज साइड का हम लोग कंसीडर किए थे 250। ठीक है, तो यदि बेस करंट हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इसी न्यूमेरिकल को, पहले इसको नोट करो। ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग दिया हुआ है यदि 20 केवीए एंड वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ हाई वोल्टेज साइड का 2500 एंड लो वोल्टेज साइड का दिया हुआ है 250। ठीक है, तो इस ट्रांसफार्मर के लिए हाई वोल्टेज साइड रेटेड करंट कितना होगा? पावर रेटिंग डिवाइडेड बाय हाई वोल्टेज साइड। तो पावर रेटिंग कितना दिया हुआ है? 20 केवी, इसको 20 इंटू किलो वन से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? वोल्ट एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज साइड का रेटिंग कितना हुआ है? 2500 दिया हुआ है इसमें, तो डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? रेटेड करंट ऑन दी हाई वोल्टेज साइड। ट्रांसफार्मर का कुछ न्यूमेरिकल तो प्रैक्टिस किए अपने घर में, तो एक दो क्लास में डिस्कस किए थे यहाँ पे, उससे डाटा बहुत ज्यादा क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज साइड में हम लोग क्या कंसीडर कर ले रहे हैं? पहले बेस वोल्टेज एंड बेस करंट, जो भी हाई वोल्टेज साइड का रेटेड होगा। यहाँ कोई न्यूमेरिकल स्पेसिफिक वैल्यू नहीं हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जनरल वैल्यू बात कर रहे हैं। ठीक है, जनरल बात कर रहे हैं, जो भी होगा उसका रेटेड वैल्यू हाई वोल्टेज साइड का, वही हम लोग को कंसीडर करना है बेस वोल्टेज एंड बेस करंट। ठीक है, तो बेस इंपीडेंस इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? वोल्टेज हम लोग यहाँ कंसीडर कर लिए, करंट कंसीडर कर लिए, तो बेस इंपीडेंस इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? वोल्टेज इक्वल टू लिखते हैं ना हम लोग, आई इंटू जेड, आई योर करंट एंड जेड इज योर इंपीडेंस। तो इंपीडेंस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज बाय करंट लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। वोल्टेज इक्वल टू क्या लिखते हैं? करंट इंटू इंपीडेंस। तो इंपीडेंस इक्वल टू क्या? वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो बेस इंपीडेंस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, क्या हो जाएगा? बेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय बेस करंट, नहीं, बेस इंपीडेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस वोल्टेज ऑन द हाई वोल्टेज साइड डिवाइडेड बाय बेस करंट ऑन द हाई वोल्टेज साइड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किधर? हाई वोल्टेज साइड का। ठीक है, अब इसमें क्या करो, दोनों साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बेस वोल्टेज ऑन हाई वोल्टेज साइड से मल्टीप्लाई करो। Suppose that this is your equation for the base impedance, that means voltage of the base voltage of the high voltage side or current
on the high voltage side base current. Okay, numerator and denominator में इसको क्या करना है, बेस वोल्टेज ऑन दी हाई वोल्टेज साइड से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे सेम रह जाएगा ना, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे देखो हम लोग इस चीज को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, तो ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं VBA से, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस वोल्टेज ऑन दी हाई वोल्टेज साइड का होल स्क्वायर, क्योंकि V into V दैट मींस V स्क्वायर, एंड बेस करंट on the high voltage side and base voltage on the high voltage side equal to क्या हो जाएगा, अगेन देखिए वोल्ट एम्पियर रेटिंग, दैट मींस वोल्टेज एंड करंट रेटिंग, सो रेटेड वोल्ट एम्पियर रेटिंग। ओके, इसको क्या करना है, 1000 पे इसको होल स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगेन डिवाइड कर, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जेड based on the high voltage side, if you divide in numerator and denominator दोनों में 1000 का होल स्क्वायर से, इसको क्या लिख सकते हैं, किलो वोल्ट का होल स्क्वायर, और इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, MVE मेगा वोल्ट एम्पियर। ओके, इसको हम लोग बेस इंपीडेंस ऑन दी हाई वोल्टेज साइड इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लिए, दैट मींस किलो वोल्ट का बेस का वोल्टेज ऑन दी हाई वोल्टेज साइड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये m क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, 10 to the power 6 ना, 10 to the power 6 volt ampere, okay, on the high voltage side. So generally we find out their rating of the transformer power and voltage in kilo or MVA or kVA. Okay, so just try to convert base impedance of the high voltage side equal to kilovolt whole square divided by volt ampere base of the high voltage side, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। अब यदि हाई वोल्टेज साइड का हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू, रिएक्टेंस का वैल्यू या इंपीडेंस का वैल्यू यदि कन्वर्ट करना चाह रहे हैं पर यूनिट में, तो क्या हो जाएगा, यदि हम लोग बेस इंपीडेंस ऑन द हाई वोल्टेज साइड हम लोग कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, बेस इंपीडेंस यदि हम लोग कैलकुलेट कर लिए, डिफिनेशन अभी क्या हम लोग बताए थे, सोच के थे पर यूनिट का, ध्यान में नहीं है, हेलो, डिफिनेशन अभी हम लोग क्या देखे थे पर यूनिट क्वांटिटी का, कोई नहीं बोल रहा है, हेलो, 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 पर यूनिट क्वांटिटी क्या बताए थे अभी, एक्चुअल क्वांटिटी रेशियो एक्चुअल क्वांटिटी टू द बेस क्वांटिटी, तो यदि हम लोग रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, रिएक्टेंस को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जो भी दिया रहेगा रेजिस्टेंस का वैल्यू ऑन द हाई वोल्टेज साइड डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू ऑफ द हाई वोल्टेज साइड, नहीं, यदि हाई वोल्टेज के रेजिस्टेंस रिएक्टेंस को हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं पर यूनिट में, क्या लिख सकते हैं, हाई वोल्टेज साइड का रेजिस्टेंस वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस इंपीडेंस वैल्यू, ये तो है जस्ट डिफिनेशन, सिर्फ हम लोग कैलकुलेट करना बेस इंपीडेंस ऑफ द हाई वोल्टेज साइड एंड जस्ट डिवाइड बाय द बेस इंपीडेंस टू द actual value of the resistance, reactance and impedance, whatever you may be. Okay, so
REH, XEH and ZEH, तो क्या है? R इक्विवेलेंट, RE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस refer to the high voltage side. XEH equivalent resistance of the high voltage side. Okay, and ZEH is your equivalent impedance of the high voltage side in per unit, represented by per unit, equal to actual value of the REH, that means equivalent resistance of the high voltage side, to the base value of the high voltage side, that means ZBH. RE रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करना है पर यूनिट में, तो रेजिस्टेंस बाय इंपीडेंस, XEH यदि कन्वर्ट करना है तो XEH इन ओम डिवाइडेड बाय ZBH इन ओम, बेस वैल्यू सेकेंड हाई वोल्टेज साइड। क्लियर हुआ हाई वोल्टेज साइड तक, या इसमें कोई दिक्कत है? हेलो, या फिर हम लोग फिर लो वोल्टेज साइड मूव करें? यस सर, लो वोल्टेज रेट ऑफ करिए। हाई वोल्टेज साइड का कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग देख लिए। तो लो वोल्टेज साइड का पैरामीटर्स क्या होगा? सेम थिंग्स होगा, दैट मींस हम लोग उसको किस रिप्रेजेंट करेंगे? सिर्फ H की जगह पे जितना भी सफिक्स में है L से डिनोट करेंगे। नहीं, लो वोल्टेज के लिए H रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? हाई वोल्टेज के लिए, तो सफिक्स में L हम लोग डिनोट करेंगे फॉर द लो वोल्टेज के लिए। तो लो वोल्टेज के लिए क्या हो जाएगा? जस्ट कंसीडर फॉर द लो वोल्टेज, बेस वोल्टेज कितना हो जाएगा? पहला काम हम लोग का क्या है? बेस वैल्यू चूज करना। व्हाट इज द बेस वोल्टेज फॉर द लो वोल्टेज साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर? अभी तो हाई वोल्टेज साइड में जस्ट बताया था ना कि बेस वोल्टेज हम लोग क्या चूज कर रहे हैं? जो मैक्सिमम वोल्टेज है हाई वोल्टेज साइड का, उसी को हम लोग बेस वैल्यू चूज कर रहे हैं। तो अगर बेस वोल्टेज यदि हम लोग अब लो वोल्टेज साइड का कैलकुलेशन यदि कर रहे हैं क्वांटिटी का, तो बेस वोल्टेज क्या होगा? रेटेड वोल्टेज ऑफ द एलवी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, दैट मींस लो वोल्टेज साइड। नहीं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस करंट? बेस करंट क्या होगा लो वोल्टेज साइड के लिए? हाई वोल्टेज होगा सर, बेस वोल्टेज। बेस वोल्टेज लो वोल्टेज साइड के लिए हम लोग यदि कंसीडर कर रहे हैं तो रेटेड वोल्टेज ऑफ एलवी वाइंडिंग, एलवी वाइंडिंग का लो वोल्टेज वाइंडिंग का जो रेटेड वोल्टेज होगा वही होगा। बेस करंट क्या हो जाएगा? रेटेड करंट ऑफ एलवी वाइंडिंग। जो एलवी वाइंडिंग का रेटेड करंट फ्लो करेगा वही देखिए बेस करंट हम लोग कंसीडर करेंगे। इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे? बेस वोल्टेज बेस करंट, बेस इंपीडेंस हम लोग फाइंड आउट करना है। जो भी हम लोग का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस या इंपीडेंस है, प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड, या हाई वोल्टेज साइड बोल सकते हैं या लो वोल्टेज साइड, उसको हम लोग डिनोट करेंगे पर यूनिट में। उसके लिए हम लोग क्या करना है कि बेस इंपीडेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बेस इंपीडेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेस वोल्टेज बाय बेस करंट चाहिए। नहीं, इंपीडेंस के लिए क्या? वोल्टेज बाय करंट। तो हम लोग सबसे पहले बेस वोल्टेज चूज करेंगे, बेस करंट चूज करेंगे, बेस इंपीडेंस हम लोग को मिल जाएगा उस साइड का, आइदर एलवी साइड का या एचवी साइड का। इतना ही तो बात है। उसके बाद क्या करना है? जस्ट रेजिस्टेंस रिएक्टेंस को यदि हम लोग पर यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं लो वोल्टेज साइड का, तो उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे बेस इंपीडेंस ऑफ द लो वोल्टेज वाइंडिंग साइड से, दैट मींस ZBE से। बाद बाकी कैलकुलेशन तो सेम होगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा? यदि हम लोग लो वोल्टेज साइड की बात कर रहे हैं तो बेस इंपीडेंस ZB in suffix L equal to VBL by IBL, that means base voltage of the low voltage side by base current of the low voltage side transformer. Okay, again you have to just multiply same in numerator and denominator by VBL. Okay, in numerator and also denominator.
So again, same things we can represent here. That means the rated voltage of LV साइड का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये वोल्टेज इनटू वोल्टेज, एंड ये रेटेड वोल्ट एम्पियर किसका हो जाएगा, रेटेड वोल्ट एम्पियर किधर का हो जाएगा, लो वोल्टेज साइड का। ये तो जस्ट सिंपल कैलकुलेशन ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हम लोग जाएंगे, हम लोग को जस्ट जरूरत पड़ेगा इसे बेस इंपीडेंस वैल्यू, ये वाला ज्यादा देखिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर का तुम्हारा दिया हुआ रहेगा, इधर मे बी वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है, पावर रेटिंग दिया हुआ है, जस्ट कन्वर्ट करना है तुम लोग को हाई वोल्टेज साइड का बेस में, बेस इंपीडेंस फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है, तो लो वोल्टेज के लिए भी क्या हो जाएगा, बेस इंपीडेंस ऑफ द लो वोल्टेज साइड इक्वल टू किलो वोल्ट होल स्क्वायर बेस ऑन द लो वोल्टेज साइड divided by MVA base on the low voltage side. Okay. And resistance यदि फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो चूंकि बेस इंपीडेंस हम लोग फाइंड आउट कर लिए, तो जस्ट हम लोग इसे डिवाइड कर देना है। क्या होगा, सेम कैलकुलेशन है, जस्ट सिर्फ सफिक्स में हम लोग क्या करना है, एल और एच यूज करना है। यदि हाई वोल्टेज साइड के लिए कर रहे हो तो एच यूज करना है, यदि लो वोल्टेज साइड के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो तो एल यूज करना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, पर यूनिट के लिए दो ही चीज ध्यान में रखना है, एक रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट फॉर दैट पर्टिकुलर साइड, and from that you have to just find out the base impedance and that convert it into this form. If you divide in numerator and denominator by 1000 whole square, so in kilovolt NMVA, क्योंकि इसको किलोवोल्ट में इसलिए कन्वर्ट कर दें क्योंकि ज्यादातर ट्रांसफार्मर का रेटिंग देखोगे तो एमवीए या केवीए या वोल्टेज भी रहेगा किलो में, तो डायरेक्टली यदि इसमें कन्वर्ट किया हुआ तो जस्ट यहाँ पे तुम वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, अदरवाइज वोल्ट एम्पियर में यहाँ पे यदि है, ये वाला सेम चीज है, यही चीज है, तो यदि इस पे तुम यूज करना चाहोगे तो जस्ट यदि ट्रांसफार्मर का यदि वोल्टेज रेटिंग किलो वोल्ट में दिया हुआ है तो उसको वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना है, यदि पावर रेटिंग एमवीए में दिया हुआ है तो उसको वोल्ट एम्पियर में कन्वर्ट कर लेना है, यदि पावर का रेटिंग किलो वोल्ट एम्पियर में दिया हुआ है तो उसको भी वोल्ट एम्पियर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसको कन्वर्सन यूनिट ध्यान में रखना है कि किस यूनिट में दिया हुआ है, किस यूनिट में हम लोग यूज कर रहे हैं सो। ठीक है, कैलकुलेशन रहेगा ना ध्यान में। तो लो वोल्टेज साइड के लिए क्या हो जाएगा, सेम थिंग्स, एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द लो वोल्टेज साइड, रिएक्टेंस फाइंड आउट करना है पर यूनिट तो रिएक्टेंस, या यदि इंपीडेंस फाइंड आउट करना है तो इंपीडेंस। ठीक है, यदि पर यूनिट साइड हाई वोल्टेज साइड के लिए वोल्टेज को फाइंड आउट करना है पर यूनिट में, करंट को फाइंड आउट करना है, क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज साइड का देखिए पर यूनिट वोल्टेज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेजिस्टेंस इंपीडेंस रिएक्टेंस दोनों साइड में दिखा दिए। हाई वोल्टेज साइड में यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू दिखा दिए, रिएक्टेंस का वैल्यू दिखा दिए, इंपीडेंस का वैल्यू दिखा दिए। अब हाई वोल्टेज वैल्यू का यदि वोल्टेज को हम लोग कन्वर्ट करना है पर यूनिट में तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज और करंट कितना होगा, वोल्टेज इन पर यूनिट ऑफ द हाई वोल्टेज साइड कितना हो जाएगा, ध्यान में नहीं आ रहा है क्या, जस्ट यही फॉर्मूला तो यूज करना है। जस्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस रिएक्टेंस यदि हम लोग वोल्टेज कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हाई वोल्टेज साइड के यदि हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं पर यूनिट में तो कैसे होगा, एक्चुअल वैल्यू दैट मींस क्या हो जाएगा, वोल्टेज ऑन द हाई वोल्टेज साइड एंड बेस वोल्टेज, यहाँ बेस वोल्टेज हो जाएगा ऑफ द हाई वोल्टेज साइड। बेस वोल्टेज कितना हम लोग कंसीडर किए, जो रेटेड वोल्टेज है वही है हाई वोल्टेज साइड का, और देखिए हाई वोल्टेज साइड का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, यही होगा रेटेड वोल्टेज, तो कितना हो जाएगा हाई वोल्टेज साइड का, सेम थिंग्स है ना, रेटेड वोल्टेज टू रेटेड वोल्टेज तो 1 हो जाएगा।
क्या नहीं समझ में आ रहा है? बोलो एक बार। हेलो, 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 आवाज नहीं जा रही क्या? कुछ बोल नहीं रहे हो। आ रहा सर। समझ में आया या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें? बोलो। हाई वोल्टेज साइड का यदि हम लोग फर्स्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हाई वोल्टेज साइड का जितना भी पैरामीटर है उसको पर यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कौन कौन सा पैरामीटर हो सकता है? रेजिस्टेंस हो सकता है, रिएक्टेंस हो सकता है, इंपीडेंस हो सकता है, या करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है। इतना ही तो क्वांटिटी है। इससे तो ज्यादा हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं कुछ। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस या इंपीडेंस। रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपीडेंस के लिए हम लोग देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्चुअली। रेजिस्टेंस वैल्यू इन ओम डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू इन ओम, ठीक है? नहीं, उसी तरीके से यदि हम लोग वोल्टेज को कन्वर्ट करना है पर यूनिट में, क्या हो जाएगा? सेम चीज, वोल्टेज इन वोल्टेज, वोल्ट डिवाइडेड बाय बेस वोल्टेज। तो बेस रेटेड वोल्टेज कितना हो रहा है? बेस वोल्टेज कंसीडर किए, तो हाई वोल्टेज साइड का एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा दोनों। वही तो कंसीडर करें। यदि 2500 यदि हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज रेटिंग है तो वही हम लोग कंसीडर कर रहे हैं बेस वैल्यू उसी पे, ठीक है? तो हाई वोल्टेज साइड को यदि पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज इन एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू इन सेम क्वांटिटी। दैट मींस 2500 बाय 2500 इक्वल टू 1 पर यूनिट वोल्टेज। करंट भी क्या है? सेम उसी तरीके से करंट, रेटेड करंट ऑफ द हाई वोल्टेज साइड को बेस यदि हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो 1 रेटेड करंट इन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दोनों सेम हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा। तो दोनों साइड, एचवी साइड और एलवी साइड, हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सब क्वांटिटी को। कर सकते हैं कि नहीं? हेलो, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं हम लोग? एटलीस्ट हाँ, यस या नो बोलो। यस सर। कर सकते हैं ना? तो जेड पर यूनिट को हम लोग कितना लिख सकते हैं? इंपीडेंस पर यूनिट को कितना लिख सकते हैं हम लोग? क्या लिखे हैं यहाँ पे? जेड पर यूनिट को हम लोग कितना लिख सकते हैं? इधर एचबी साइड या एलबी साइड, जेड इन ओम डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू कितना आ जाएगा? किलो वोल्ट। ये तुम अपना साइड पे देखिए, देख लेना कि लो वोल्टेज साइड कैलकुलेशन कर रहे हो या हाई वोल्टेज साइड कर रहा है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग सफिक्स में एच और एल लगाना है, ठीक है? यदि हाई वोल्टेज साइड के लिए कर रहे हो तो हाई एच लगाओगे, यदि लो वोल्टेज साइड के लिए कर रहे हो तो एल लगाओगे, ठीक है? नेक्स्ट, यदि हम लोग इसी फॉर्मूला को यदि कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सपोज एक बेस केवीए पे दिया हुआ है, ठीक है? एक बेस वैल्यू पे इंपीडेंस दिया हुआ है, ठीक है? अब दूसरे बेस वैल्यू पे यदि हम लोग को फाइंड आउट करना है तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? यदि एक बेस वैल्यू पे, बेस वैल्यू जिसका दिया हुआ है उस पे इंपीडेंस दिया हुआ है, सपोज करो पर यूनिट 0.2, ठीक है? इसका हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अनदर बेस वैल्यू पे, अनदर बेस वैल्यू में। तो जेड पर यूनिट को कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो 0.2 दिया हुआ है वो अनदर बेस वैल्यू पे। इसको जस्ट यहाँ पे ध्यान में रखो। जस्ट देखो, यहाँ पे यदि हम लोग एक बेस वैल्यू पे पर यूनिट में दिया हुआ है रेजिस्टेंस या इंपीडेंस, दूसरे बेस वैल्यू पे हम लोग यदि कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसको, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे?
सेम यही चीज फॉर्मूला यूज करना है। सपोज करो कि जेड पर यूनिट रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग कितना, जेड डिवाइडेड बाय जेड इंपीडेंस। तो जेड इंपीडेंस इक्वल टू किलो वोल्ट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एमवीए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक पार्टिकुलर वैल्यू पे जेड इंपीडेंस, दैट मींस बेस वैल्यू उसका दिया हुआ है, स्पेसिफाइड किया हुआ है, और एमवीए रेटिंग उसका बेस स्पेसिफाइड किया हुआ है। इस पे दिया हुआ है 0.2। अब अनदर बेस वोल्टेज हम लोग यदि कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको 1 और 2 से डिनोट करो या ओल्ड एंड न्यू से वैल्यू डिनोट करो। तो जस्ट इसको डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को 1 और 2 कंसीडर कर दो। ठीक है, या सेम चीज यहाँ पे इसी के लिए 1 और 2 के लिए करना चाहते हो, सेम चीज कर दो, डिवाइड कर दो उसको। तो कितना हो जाएगा, जेड पर यूनिट न्यू डिवाइडेड बाय जेड पर यूनिट ओल्ड। इसको कन्वर्ट करो, कितना आ जाएगा। कॉपी है ना तुम लोग पास? जस्ट हेलो, तो जस्ट इसको कन्वर्ट कर लेना तुम लोग। जेड पर यूनिट ओल्ड इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, जेड इन ओम इंटू एमवीए बेस ओल्ड, ये ऊपर चला जाएगा ना, डिवाइडेड बाय किलो वोल्ट बेस ओल्ड, एंड एमवीए न्यू यदि फाइंड आउट करना, सॉरी इंपीडेंस न्यू फाइंड आउट करना है तो उसको कितना से लिखेंगे, जेड पर यूनिट न्यू इक्वल टू जेड इन ओम डिवाइडेड बाय सेम इंपीडेंस है अनदर बेस वैल्यू पे। तो क्या हो जाएगा, एमवीए बेस न्यू डिवाइडेड बाय किलो वोल्ट बेस न्यू का होल स्क्वायर। जस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, हो जाएगा। एक बेस वैल्यू, बेस वोल्टेज या बेस एमवीए रेटिंग पे तुम्हारा इंपीडेंस दिया हुआ है, और उसी को हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें, दूसरे बेस वोल्टेज और बेस इंपीडेंस वैल्यू पे। तो जस्ट फॉर्मूला ध्यान में रखने से हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और कोई प्रॉब्लम है इसको जस्ट एक्सप्लेन करते हैं हम लोग थोड़ा सा। जस्ट यदि इसी पे यदि हम लोग एक प्रॉब्लम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, अभी डिस्कस किया हम लोग, उस पर प्रॉब्लम कंसीडर कर लेते हैं। क्या है, यदि हम लोग जेड पर यूनिट कन्वर्ट करते, जेड इन ओम डिवाइडेड बाय किलो वोल्ट, this is nothing but Z base impedance value, so किलो वोल्ट होल स्क्वायर बेस, ये हो जाएगा कितना, एमवीए बेस। सो ये पर यूनिट हो गया। अब इसमें क्या कन्वर्ट करना है, अनदर बेस वैल्यू पे इसको मॉडिफाई करना है, या तो एमवीए पे और अनदर वोल्टेज रेटिंग पे। तो ओल्ड वाला को इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे, जस्ट फॉर्मूला पे, जो भी फॉर्मूला हम लोग अभी ट्राई किए, एक्चुअल वैल्यू बाय बेस वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओल्ड के लिए सफिक्स में ओल्ड लिखना है तुम, and formula is same as this one, that means Z in ohm into MVA base old by kilovolt base old whole square, and Z per unit new equal to how much, Z in ohm MVA base new, सफिक्स में ध्यान रखना है, किलोवोल्ट बेस न्यू का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को डिवाइड कर देना है एक दूसरे, इस इक्वेशन को में इस इक्वेशन से डिवाइड कर देना, तो कितना आ जाएगा, यदि इस पे दिया हुआ है पैरामीटर हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम लोग, जेड पर यूनिट न्यू इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड, ये जो वैल्यू है टोटल इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, दैट मींस एमवीए बेस न्यू डिवाइडेड बाय एमवीए बेस ओल्ड एंड किलो वोल्ट बेस ओल्ड बाय किलो वोल्ट बेस न्यू।